Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. And I must remember that you must have seen the video of the chapter of sound, first part, what is sound and what are the properties of wave. Now, just to recapitulate, a sound is a form of energy, right, produced by the vibrations. As we all know that the vibrations are produced, therefore, a sound is being produced. But for that, we need a medium. For example, when we have talked about the example of the drum, as you must have remembered, the drum over here, when we hit the drum, the membrane of drum vibrates. So membrane क्या है ड्रम की? सॉलिड सरफेस. सो जब एक सॉलिड सरफेस पे मेम्ब्रेन हिट हो रही है या ड्रम की स्टिक्स हिट हो रही है, तभी आपकी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है एंड तभी आपकी साउंड जनरेट हो रही है. सो दैट इंडिकेट्स साउंड is being produced by hitting on a solid surface. Okay, while the air in a drum, when the drumsticks hit the drum, the outer membrane of the drum vibrates up and down. Whenever the drum membrane moves up, it compresses the air. नीचे air को press करती है and then just above it. So in this case, the air molecules expand. Air molecules expand करते हैं because जब वो move कर रहे हैं तो expansion हो रही है. And when the drum membrane vibrates down, जब भी ड्रम मेम्ब्रेन नीचे की तरफ वाइब्रेट करती है तब एयर मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर रहे हैं एंड जब ड्रम की मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ आ रही है तो एयर मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो इट फॉर्म्स अ कंप्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एयर, जिससे एयर प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है एंड इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ रिपल्स इन sound waves in air, and the same thing is carried forward in your water bodies also. Okay, so in ripples की वजह से vibrations pass on हुई and it leads to the production of sound by a drum. All these same things will happen in the guitar and in the tunic fork. Okay, so it shows that sound needs a medium to propagate. Sound को एक medium चाहिए travel करने के लिए, and the medium can be solid, liquid or gas. As we all know, we have three types of medium, that is solid, liquid and gas. So in these three states of matter, we can see that कि जो हमारे पास तीन मीडियम्स हैं उनमें क्या ट्रैवल होगा एक्चुअली आपका पार्टिकल की वाइब्रेशंस, एंड ये वाइब्रेशंस वेव्स प्रोड्यूस करेंगे दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ sound from one point to another. Sound needs a medium or material medium for their propagation, like solid, liquid or gas to travel, because the molecules of solid, liquid and gas carry sound waves from one point to another. Okay, the sound cannot progress through the vacuum. अब now what is a vacuum? वैक्यूम मीन्स कि ऐसा सरफेस या ऐसा एरिया जहाँ पे ना कोई भी सॉलिड पार्टिकल, ना कोई लिक्विड पार्टिकल और ना ही कोई गैस पार्टिकल अवेलेबल है. मीन्स गैस में एयर भी अवेलेबल नहीं है कोई सी. तो जहाँ पे तीनों ही चीज़ अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है. क्या क्रिएट होता है? वैक्यूम क्रिएट होता है. एंड इस वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं होता जो आपकी वाइब्रेशन को पास ऑन कर सके. ओके, सो वहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस, मतलब वाइब्रेशंस हो रही होंगी बट आपको साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होंगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स ने वाइब्रेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है. सो इट शोज कि साउंड वेव्स कैन या साउंड कैन नॉट बी हियर इन द वैक्यूम. ओके, सो टू डिमॉन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी और टू make you explain the concept that sound needs a medium, we need a bell jar. This is a bell jar. Now in this bell jar we have an electric connection, then a switch, then electric bell, and then a glass coated jar, and at the bottom we have connected a vacuum pump. Now what will happen when we connect it to a electric connection, हमने switch on किया, बैटरी कनेक्ट करी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो ये हैमर है, सी आपका ये जो हैमर है, जैसे ही यहाँ पे कनेक्शन हुआ आपका, सपोज यहाँ पे कनेक्शन हुआ, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है. ओके, आपने स्विच प्रेस किया, स्विच प्रेस करके क्या होगा, यहाँ से कनेक्शन गया और इस हैमर को हिट करेगा. ये हैमर इस बेल की कॉन्ग से स्ट्राइक करेगा. ठीक, ये स्ट्राइक करेगा तो ये बार साउंड प्रोड्यूस करेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या अवेलेबल है, एयर. ओके, सो इसने क्या किया, एक्चुअली में एयर पार्टिकल्स ने
वाइब्रेशंस को पास ऑन किया जो हैमर के स्ट्राइकिंग होने से गोंग पे प्रोड्यूस हो रही थी। ये हैमर था, हैमर ने इस गोंग को स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद ये हिला, यहाँ के पार्टिकल्स मूव हुए। जब यहाँ के पार्टिकल्स मूव हुए उसने पूरे मीडियम में पार्टिकल्स को वाइब्रेट कराना, मूव करा दिया। अब पार्टिकल्स किस में थे? एयर में थे। तो एयर एज अ मीडियम की तरह वर्क कर गए यहाँ पे। ओके, बट अब नाउ वी विल डू कि हम यहाँ पे वैक्यूम पंप ऑन करते हैं। एंड वैक्यूम पंप जब हम ऑन करते हैं, इस बेल जार में जितनी भी एयर होगी वो यहाँ से रिमूव कर देगा बाहर। ओके, यहाँ से एयर रिमूव होगी। सो अल्टीमेटली हमारा कनेक्शन तो ऑन है, ये वाला भी स्विच भी ऑन है, हैमर स्टिक भी कर रहा है बेल पे, गोंग पे हिट भी कर रहा है। बट एज यहाँ पे कोई भी पार्टिकल, मीन्स यहाँ पे कोई भी एयर पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वी हैव ओपन द वैक्यूम पंप एंड वैक्यूम पंप ने क्या किया, सारी एयर को ड्रेन आउट कर दिया। जब सारी एयर ड्रेन आउट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा क्लास, कि यहाँ पे आपकी हैमर स्ट्राइक तो करेगा गोंग पे, बट आपको वॉइस ऑफ बेल सुनाई नहीं देगी। सो दिस शोज दैट medium is required for the propagation of sound. Now read this activity. Take a bell jar. A bell jar is a laboratory equipment used for creating a vacuum. Its shape is similar to that of a bell. Place an electric bell in the bell jar. आपने electric bell रख दी. Start pumping out the air of the sealed bell jar. आपने उस वैक्यूम बेल जार में से आपने एयर बाहर निकाल दी। एज वी स्टार्ट पंपिंग आउट द एयर, जैसे ही हमने एयर को बाहर निकाली, द साउंड ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल कमिंग आउट ऑफ द बेल जार स्टार्ट्स फेडिंग। जैसे हमने एयर बाहर निकाली, उस बेल जार में से जो भी आवाज़ें थी वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई। फेडिंग मीन्स कि पहले बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी, फिर धीरे धीरे थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो गई। एज सुन एज द वैक्यूम इज अचीव्ड, जैसे उसके अंदर प्रॉपरली पूरा वैक्यूम आ गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, उस बेल जार में हैमर तो स्ट्राइक कर रहा होगा बेल के ऊपर, बट अल्टीमेटली वो साउंड आपको ऑडिबल नहीं होगी। ऑडिबल मीन्स कि वो आपको सुनाई नहीं देगी। सो दिस शोज दैट द हैमर कंटिन्यूज टू हिट द गॉन्ग बट यू आर नॉट एबल टू हियर द साउंड। दिस मीन्स दैट स्टिल द साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस तो हो रही है बट नाउ वी कैन नॉट हियर इट, बट हम उसे सुन नहीं सकते। दिस इज बिकॉज साउंड वेव्स ऑलवेज नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ये बताता है कि साउंड वेव हमेशा एक मीडियम चाहता है। इन द बेल जार इट वॉज, बेल जार में क्या था, वहाँ पे एयर था और एयर हमने निकाला तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। सो जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल। सो दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट हाउ द साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। नाउ फॉर दिस सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, यू मस्ट हैव डन इन योर चाइल्डहुड डेज कि आप टेबल के दोनों कॉर्नर्स पे अपने ईयर रखते थे एंड देन टैप ऑन, आप टैप करते थे एक साइड से। जब आप एक साइड से टैप करते थे तो आपको दूसरे ईयर की साइड पे आपको साउंड ट्रैवल होती हुई दिखाई देती, सुनाई देती थी। दैट शोज कि वहाँ पर सॉलिड, जो टेबल है वो सॉलिड है, तो वहाँ पे वो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है किसकी हेल्प से, सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस ने वाइब्रेशंस पास किया एंड वो अल्टीमेटली आपके ईयर के पास पहुँच गई। तो दिस शोज दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ओके, सो कोई अगर आपसे पूछता है कि बेल जार के अलावा कोई और एक्टिविटी है दैट कैन डिमॉन्स्ट्रेट साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, तो आप वहाँ पे ये वाली एक्टिविटी लिख सकते हैं। सो आई होप इन दिस वीडियो द टॉपिक दैट इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल आपको क्लियर हो गया। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल। Thank you and have a nice and please do the work on time and submit it to me. Thank you.